Chapter 4, A Dialogue with Bill Gates. Some people reach unprecedented heights of success with their consistent efforts and undaunted spirit. A few of them resolve to go out of the way and extend a helping hand to uplift the needy. They intend to give back to society in a generous way. Bill Gates is one such person. Let us read about him. India conferred the Padma Bhushan Award on billionaire philanthropist and Microsoft co-founder Bill Gates and his wife Melinda Gates in 2015 for their remarkable work to improve health in developing countries. Their foundation, named the Bill and Melinda Gates Foundation, is actively involved and has poured in billions of dollars into medical research in developing countries. इंडिया ने पद्म भूषण अवार्ड दिया था फिलैंथ्रोपिस्ट और बिलियनर बिल गेट्स को. philanthropist means a person who works for the welfare of others, especially by donations. philanthropist वो लोग होते हैं जो दूसरों के भले के लिए काम करते हैं डोनेशंस के थ्रू, चंदा वगैरह इकट्ठा करके, वेलफेयर फंड्स इकट्ठे करके. तो बिल गेट्स वाज वन ऑफ सच पर्सन. ही वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ही वाज अ बिलियनर. और इंडिया ने पद्म भूषण अवार्ड दिया था बिल गेट्स को 2015 उनके काम के लिए टू इम्प्रूव हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज़. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हेल्थ कंडीशन, जो स्वास्थ्य की कंडीशन, उनकी फाउंडेशन है जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन सच वर्क. वो ये सारा काम कर रही है एंड बहुत सारा इस फाउंडेशन ने बहुत सारा पैसा दिया है मेडिकल रिसर्च के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में. Entrepreneur Bill Gates founded the world's largest PC software company called Microsoft with Paul Allen, and he subsequently became one of the richest men in the world according to the Forbes list from 1995 to 2014. Entrepreneur is a person who sets up a business taking on financial risk. एंटरप्रेनर वो लोग होते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, टेकिंग बिजनेस रिस्क, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सारी रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं एंड अपना पैसा लगाकर बिजनेस करते हैं. दोज पर्सन्स आर कॉल्ड एंटरप्रेनर. एंटरप्रेनर बिल गेट्स ने दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, ही इज़ द फाउंडर along with Paul Allen of the company called Microsoft, and he subsequently became और दुनिया के सबसे ज़्यादा richest man बने according to the Forbes list 1995 से लेकर 2014 तक. William Henry Gates III, popularly known as Bill Gates, was born on 28 October 1955 in Seattle, Washington, to William H. Gates Sr. and Mary Maxwell. He grew up in an upper middle class family with two sisters. He had a very close relationship with his mother, Mary. William Henry Gates III, इन्हें ही बिल गेट्स कहा जाता है, इन्हीं का नाम बिल गेट्स है. इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को हुआ सीटल वॉशिंगटन में. इनके फादर का नेम विलियम एच गेट्स था एंड हिज मदर्स नेम वाज मैरी मैक्सवेल. उनकी जो परवरिश थी वो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुई. उनकी दो सिस्टर्स थी और बिल गेट्स की जो रिलेशनशिप अपनी मदर के साथ थी वो बहुत क्लोज थी. वॉज वेरी क्लोज टू हिज mother Mary. The Gates family atmosphere was warm and close, and all the three children were encouraged by parents to be competitive and strive for excellence. Bill showed early signs of being competitive as he coordinated family athletic games at their summer house on Puget Sound. गेट्स फैमिली का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, सब एक दूसरे के एंड दे लव ईच अदर वेरी मच. तीनों जो बच्चे थे बिल गेट्स की दोनों बहनें और बिल गेट्स, वो इस तरीके से उनकी परवरिश हुई थी, उनके पेरेंट्स ने उन्हें इस तरह से रेस किया था कि दे हैव अ कंपेटिटिव स्पिरिट. उनमें कंपटीशन करने की एक अंदर से उनकी विल पावर थी. उनकी फैमिली उन्हें पूरा सपोर्ट करती थी हर काम में जो तीनों बच्चे करना चाहते थे. Bill's mother Mary was a teacher who gave up her career after a brief period to devote time raising the children and to work with charities as well as on civic affairs. She often took Bill along when she volunteered in schools and at community organizations.
बिल गेट्स की मदर जो थी मैरी, शी वॉज अ टीचर, बट उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया था बिकॉज शी वॉन्ट टू गिव टाइम टू हर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनकी परवरिश करने में शी वॉन्टेड टू गिव हर टाइम, दैट इज़ वाई शी लेफ्ट हर वर्क एज अ टीचर। बट वो चैरिटीज़ के लिए काम करती रहती थी और काफ़ी बार वो बिल गेट्स को अपने साथ भी लेकर गई जब वो सोसाइटी के लिए वॉलंटियर करने चाहती थी इन स्कूल्स एंड एट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस। Bill was enrolled at Seattle's Lakeside School when he turned 13 and excelled in all subjects, especially in maths and science. He also did very well in drama and English. At Lakeside School, a computer company offered to provide computer time for students. Bill Gates met Paul Allen at school and they became fast friends, sharing a common enthusiasm over computers. Bill graduated from school in 1973 and joined Harvard University. According to his parents, wished to become a lawyer, but his interest was always in computers. In 1974, he dropped out of the university after discussions with his parents, who supported him. बिल का एडमिशन सीटल्स लेकसाइड स्कूल में हुआ था जब वो 13 साल का था एंड ही डिड वेरी गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ वो सारे सब्जेक्ट्स में पास हुआ, स्पेशली मैथ्स एंड साइंस में ही स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, और उसने इंग्लिश एंड ड्रामा में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेक साइड स्कूल में ही के साइड एक कंपनी थी, कंप्यूटर कंपनी, जहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती थी। वहाँ पर बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई और वहाँ से ही वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए बिकॉज उनका सेम इंटरेस्ट था, कॉमन इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स की तरफ। एंड बिल ने स्कूल से ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द स्कूल इन 1973। उसके बाद उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की अपने पेरेंट्स की विश पर, क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक लॉयर बने, लेकिन उसका हमेशा से इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में ही था। इसी वजह से 1974 में उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करके, एंड उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया। In 1976, Microsoft was set up in partnership with Paul Allen. In 1978, the company grossed $2.5 million with Bill as the CEO and chairman of the company. It surged ahead, and by 2014, his wealth was more than $82 billion. 1976 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सेटअप की गई पॉल एलन की पार्टनरशिप के साथ। 1978 में कंपनी ने इतना अच्छा बिजनेस किया $2.5 मिलियन का, एंड बिल गेट्स जो थे उसके सीईओ और चेयरमैन बने, एंड आगे चलकर 2014 तक उस कंपनी के जो वेल्थ थी, उसका पैसा था, वो बढ़कर $82 बिलियन तक पहुंच गया। Meanwhile, he met Melinda French in 1989 and they subsequently got married in 1994. But Bill Gates was devastated when his mother was diagnosed with breast cancer and died later the same year. उन्हीं कुछ सालों में बिल गेट्स की मुलाकात मेलिंडा फ्रेंच से हुई 1989 में, और 1994 में दोनों ने शादी करी। लेकिन बिल गेट ब्रोक, ही वॉज डिवास्टेटेड, उसके मीन्स कॉज सीवियर शॉक और ग्रीव, मतलब बहुत ज़्यादा सदमा लगा जब उसे पता चला कि उसके मदर को कैंसर है, एंड उसी साल में हिज मदर died. With the help of his wife Melinda, Bill began to realize that he had an obligation to give more of his wealth to charity. और कुछ टाइम बाद मेलिंडा, बिल की वाइफ, ने ये रियलाइज़ करवाया बिल को कि उन्हें अब अपना पैसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी के लिए देना चाहिए। He took interest in filling his mother's role as a civic leader. The Bill and Melinda Gates Foundation was formed in 2000 for philanthropic work. और बिल ने फिर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया अपनी मदर का जो रोल था वो फिलफिल करने के लिए, क्योंकि उसकी मदर बहुत सारे चैरिटी इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स करती थी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो आफ्टर हर डेथ बिल टुक हर रोल एंड ही स्टार्टेड डूइंग द वर्क विच हिज मदर यूज्ड टू डू। उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाई गई 2000 में इसी काम को आगे
बढ़ाने के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लोगों का भला करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वाज फॉर्म। बिल गेट्स हैज स्टेप्ड डाउन एज चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बट इट actively involved in charity work. He keeps visiting various parts of the world, including India, in connection with this work. During one of his visits to a school, Bill was interviewed by Anju, the editor of the school magazine. Here are some excerpts from the interview wherein he speaks about his childhood, his work and his vision for the next 15 years. बिल गेट्स अब माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन उन्होंने वो छोड़ दी थी। ही अपॉइंटेड अनदर चेयरमैन फॉर हिज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड उन्होंने खुद को ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व कर लिया था, इसीलिए वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते रहते थे, इंक्लूडिंग इंडिया, अपने इसी काम के सिलसिले में। और अपने एक स्कूल के विजिट के दौरान उनका इंटरव्यू हुआ था बाय अंजू, एक स्कूल मैगजीन की एडिटर थी। और यहाँ पर कुछ उस इंटरव्यू के हाईलाइट है, एक्चुअल इंटरव्यू नहीं है ये बिल गेट्स का, बट कुछ हाईलाइट्स दे रखे हैं कि वो इंटरव्यू ऐसा हो सकता था। दिस इज़ एन इमेजिनरी इंटरव्यू बट रिफ्लेक्ट्स द व्यूज़ ऑफ बिल गेट्स। ये एक इमेजिनरी इंटरव्यू है, मतलब सिर्फ इमेजिन करके इंटरव्यू को लिखा गया है कि किस तरह से बिल गेट का इंटरव्यू हुआ होगा एंड व्हाट ऑल ही हैज़ रिप्लाइड, कि जिससे उनकी पर्सनैलिटी की हमें एक झलक मिलती है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन बिल गेट्स वॉज। सो अंजू, सर आई वेलकम यू टू आवर स्कूल, वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हेयर टुडे। अंजू कहती हैं कि सर मैं आपको अपने स्कूल में वेलकम करती हूँ एंड हम बहुत खुश हैं आपको यहाँ पर पाकर। बिल गेट्स, थैंक यू, आई एम ग्लैड टू बी विद यू ऑल, आई अप्रिशिएट द वार्म वेलकम दैट आई रिसीव्ड इन द मॉर्निंग असेंबली। बिल गेट्स उन्हें थैंक यू करते हैं और कहते हैं मुझे भी बहुत खुशी है आप लोग के साथ आकर और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से आप लोग ने मेरा स्वागत किया है मॉर्निंग असेंबली में। अंजू, वी ऑल आर thrilled to have you here. It was an expression of our love and respect for you, sir. Tell me, as a child, you must have also been fond of playing games like us. Bill Gates, oh yes, I enjoyed playing board games, Risk being my favorite. I was very good at playing Monopoly. अंजू कहती है सर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको यहाँ पर देखकर एंड ये हमारा प्यार और आपके लिए इज़्ज़त है जो हमने आपको यहाँ बुलाया है। प्लीज़ आप मुझे बताइए, जब आप एक बच्चे थे तो आपको भी खेलना पसंद था, किस तरीके के गेम्स आप खेलते थे? तभी बिल गेट्स ने कहा मुझे बोर्ड गेम्स खेलना बहुत पसंद था एंड मेरा फेवरेट गेम जो था दैट वाज मोनोपोली। मोनोपोली एक बोर्ड गेम है जिसमें कि एक प्लेयर फाइनेंशियल डीलिंग्स करता है, मतलब पैसों वाला जो खेल होता है, इन द इमिटेशन ऑफ मनी, लाइक मनी को रखकर सिर्फ इमिटेट करके पैसा लगाकर खेलना। बचपन में भी वो इस तरीके के ही गेम्स खेलना पसंद था बिल गेट्स को, जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व होता था, जिसमें इन मॉनेटरी टर्म्स। अंजू, ओ व्हाट एक्टिविटी केप्ट यू ऑक्यूपाइड व्हेनेवर यू फाउंड टाइम। तभी अंजू पूछती हैं आपको कौन सी एक्टिविटी में आप बिजी रखना चाहते थे खुद को जब भी आपको टाइम मिलता था। बिल गेट्स, आई वॉज अ वोरेशियस रीडर, आई वुड स्पेंड आवर्स रीडिंग रेफरेंस बुक्स लाइक इंसाइक्लोपीडियाज। बिल गेट्स ने कहा कि मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। आई वॉज अ वोरेशियस रीडर मीन्स ही लाइक्स टू रीड अ लॉट, तो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आई कैन स्पेंड आवर्स, मैं कई घंटे रेफरेंस बुक्स और इंसाइक्लोपीडियाज पढ़ के गुजार सकता था। Encyclopedia is a book giving information on many subjects and arranged alphabetically. Encyclopedia ऐसी बुक होती है जिसमें काफ़ी चीज़ों को लेकर इंफॉर्मेशन दी गई होती है। अंजू, ओके, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर बीइंग कॉन्फर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड इन 2015। बिल गेट्स, ओ थैंक यू। यहाँ पर अंजू बिल गेट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करती है जो 2015 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था एंड उसके लिए बिल गेट्स उसको थैंक यू बोलते हैं। अंजू, when was the Bill and Melinda Gates Foundation set up and what was the idea behind it? अब अंजू उनसे पूछती है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को कब सेटअप किया गया था एंड उसके पीछे का आइडिया क्या था, क्यों आपने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को बनाया। Bill Gates, the primary aim of the foundation are globally to enhance healthcare and reduce extreme poverty.
and in America to expand educational opportunities and to access information technology. The foundation is based in Seattle, Washington. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का प्राइमरी एम था वो ये था कि हेल्थ केयर सर्विसेज को पूरी दुनिया भर की हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रॉपर करना, बढ़ाना एंड जो गरीबी है उसे कम करना, और अमेरिका में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई को, लिटरेसी को बढ़ाना, एक्सेस देना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। एंड जो फाउंडेशन है इट इज़ इन सीटल, वॉशिंगटन। अंजू, कैन यू शेयर द नेम्स ऑफ द ट्रस्टीज हु कंट्रोल इट? क्या आप हमें नाम बता सकते हैं उन ट्रस्टीज के जो इसे कंट्रोल करते हैं? बिल गेट्स, श्योर। द 3 ट्रस्टीज आर मेलिंडा गेट्स, वॉरेन बुफे एंड मी। बिल गेट्स बताते हैं ट्रस्टीज के नाम, मेलिंडा गेट्स, वॉरेन बुफेट एंड मी। हम तीनों इस फाउंडेशन के ट्रस्टीज हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। अंजू, सर, व्हाट आर द वेरियस एरियाज इन विच द फाउंडेशन इज इन्वॉल्व इन इंडिया? तभी अंजू पूछती है कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसमें कि ये फाउंडेशन इन्वॉल्व है। बिल गेट्स, वेल, आर न्यू दिल्ली ऑफिस ओवरसीज द वर्क ऑफ द फाउंडेशन इन इंडिया. We work in various sectors that include maternal and child health, nutrition and health services, vaccines, routine immunization, family planning, agricultural development, sanitization, control of infectious diseases and AIDS. We also help in the polio eradication program. India has been declared polio free. तभी वो बताते हैं कि न्यू दिल्ली में हमारे ऑफिसेस हैं जो कि काम करते हैं एंड हम बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, मैटरनल में, चाइल्ड हेल्थ केयर में, न्यूट्रिशन में, वैक्सीन्स, रूटीन इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, हर सेक्टर में हमारे ऑफिसेस जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। और हमने पोलियो को जड़ से मिटाने के प्रोग्राम में भी काफ़ी मदद की है और इंडिया अब पूरी तरीके से पोलियो फ्री हो चुका है। अंजू, यस सर, आई एम श्योर द फाउंडेशन वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। तभी अंजू कहती है, सर, आई एम श्योर कि फाउंडेशन जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रही होगी। जो इंडिया की अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कर रही है। बिल गेट्स, ओ यस, वी वर्क इन पार्टनरशिप विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, non-profit organizations, community groups, academic institutions and the private sector. हम पार्टनरशिप में काम करते हैं इंडिया की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स हैं और प्राइवेट सेक्टर के साथ भी हम काम कर रहे हैं कोलैबोरेट करके। Anju, sir, may I ask you what are the changes you foresee in the next 15 years where the foundation will also play a big role? Do you share your vision with us? सर, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आने वाले अगले 15 सालों में आप इस फाउंडेशन को कहाँ देखते हैं? क्या इसमें इस फाउंडेशन का बड़ा रोल रहेगा? क्या आप अपना विजन हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? Bill Gates, you have asked an important question. The Bill and Melinda Gates Foundation turned 15. We are involved in philanthropic efforts. The lives of the poor will change dramatically in the next 15 years. The goals we adopt are specifically in the health, farming, education and financial sectors. तभी बिल गेट्स अंजू से कहते हैं कि तुमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और हमारी फाउंडेशन जो है वो 2015 में उसे 15 साल हो चुके हैं एंड हम बहुत सारे सोसाइटी की वेलफेयर वाले कामों में इन्वॉल्व हैं। जो गरीबों की ज़िंदगी है वो अगले आने वाले 15 इयर्स में बिल्कुल बदल जाएगी और जो हमारे गोल्स हैं जो हमने अडॉप्ट किए हैं वो स्पेसिफिकली हेल्थ के लिए, फार्मिंग के लिए, एजुकेशन के लिए एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए हैं। अंजू, ओके, काइंडली एलोबोरेट ऑन दिस। तभी अंजू कहती है, ठीक है सर, काइंडली आप इसको एलाबोरेट कीजिए कि आप कौन कौन से सेक्टर में आने वाले सालों में काम करेंगे। बिल गेट्स, वी आर पुटिंग इन मोस्ट मनी इन द हेल्थ केयर सेक्टर. आवर वर्क इज रिलेटेड टू अपस्ट्रीम साइंस, इन्वेंटिंग वैक्सीन्स एंड ऑल्सो ensuring they reach children all across the world.
These are mainly vaccines for diseases like diarrhea and some respiratory diseases. These vaccines can save over 500,000 lives in future. We are raising more money for this purpose. बिल गेट्स सभी कहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में लगाना चाहते हैं, हमारे स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए। हमारा काम जो है मेनली रिलेटेड है साइंस की तरफ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स बनाएं जिसमें पूरी दुनिया भर के बच्चों को कुछ भी बीमारी हो तो उससे लड़ने के लिए वैक्सीन्स हो, प्रॉपर मेडिसिन हो, लाइक फ्रॉम द डिसीजेस डायरिया, रेस्पिरेटरी डिसीज होती हैं, सांस लेने में जो परेशानी होती है उन बीमारियों से लड़ने की वैक्सीन्स हो, और ये वैक्सीन्स ऐसी हो कि आने वाले टाइम में 500,000 लिव्स जाने बचा पाएँ। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। We are raising funds for this purpose. अंजू, what about the farming sector? अब अंजू पूछती हैं और फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड क्या? बिल गेट्स सभी आंसर करते हैं, with growth in the world population it is essential that world food productivity improves to almost double by 2050. It is very low in Africa. It is important that farmers use better seeds, adopt the method of growing 2 crops in a season and rotate crops. If the farmers do not have enough money to buy fertilizers, there should be a credit system in many countries in Africa. New measures are being adopted to tackle the problem. We will work in this direction. तभी बिल गेट्स कहते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ साथ ज़रूरी है कि जो फूड प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ की जाए, बढ़ाई जाए, डबल की जाए 2050 तक, क्योंकि अफ्रीका में जो फूड प्रोडक्टिविटी है इट इज़ वेरी लो। और बहुत ज़रूरी है कि फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सीड्स यूज़ करें, नए मेथड फसल उगाने के नए नए तरीके यूज़ करें, क्रॉप्स को रोटेट करें, मीन्स एक बार में एक क्रॉप, दूसरी बार में दूसरी क्रॉप उगाएं। और अगर फार्मर्स के पास पैसा नहीं है फर्टिलाइज़र्स खरीदने का तो एक क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए जिस पे फार्मर्स को फर्टिलाइज़र्स दिए जाएं क्रेडिट पर, सो दैट दे कैन पे आफ्टरवर्ड्स। और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ में नए नए तरीके निकाले गए हैं इन सारी परेशानियों से लड़ने के लिए। वी विल वर्क इन दिस डायरेक्शन, और हम इस डायरेक्शन में भी, इस दिशा में भी काम करेंगे। अंजू, यस, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन आर अ बिग थ्रेट। तभी अंजू कहती है कि भूख और जो माल न्यूट्रिशन है कि कम खाने की वजह से लोगों के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इससे भी लोगों की जानों को बहुत ज़्यादा खतरा है। इसमें what are you doing in this field? Bill Gates. Food productivity needs to go up so that people have more food and nutritious food. तभी बिल गेट्स रिप्लाई करते हैं कि फूड प्रोडक्टिविटी जो है वो ऊपर जाना चाहिए सो दैट बच्चों को प्रॉपर एंड न्यूट्रिशियस फूड मिल पाए, खाना मिल पाए, जिससे उन्हें माल न्यूट्रिशन का वो शिकार नहीं हो। अंजू, सर, लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन. व्हाट डू यू फोरसी इन दिस फील्ड? विल देयर बी अ रिमार्केबल डेवलपमेंट देयर? तभी अंजू पूछती है कि सर, एजुकेशन की फील्ड में आप क्या सोचते हैं एंड आपने क्या सोचा है कि इस फील्ड में क्या हो सकता है, क्या इसमें भी एक डेवलपमेंट आएगा? बिल गेट्स, ओ येस, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन देयर विल बी ट्रेमेंडस चेंजेस. There will be a broader network between the learners, teachers, parents and friends. A lot of information and lot of much better quality will be available on the phone, tablet, etc. It will not involve only lectures but will be more interactive in nature. In the next 15 years, most energy will go into developing the basics, reading and writing in poor countries. तभी बिल गेट्स कहते हैं, yes, there will be a remarkable development in the field of education also. एजुकेशन के फील्ड में भी हमारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जो नेटवर्क है वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। लर्नर्स और टीचर्स के बीच में, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स के बीच में जो नेटवर्क है उसे हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे जो नॉलेज है वो यहाँ से वहाँ एक्सचेंज होगी, बेटर क्वालिटी में एक्सचेंज होगी, एंड बेटर क्वालिटी में फ़ोन और टैबलेट्स पर अवेलेबल होगी। इसमें सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं होंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वेज होंगे लर्निंग के लिए, तो स्टूडेंट विल फाइंड एजुकेशन मोर इंटरेस्टिंग इन द अपकमिंग ईयर्स। अंजू, व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन? अब अंजू बिल गेट्स से पूछते हैं कि आपके क्या विचार हैं
जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को लेकर एजुकेशन में जो होता है, आप उस बारे में क्या सोचते हैं? बिल गेट्स, countries are making a lot of progress in girl education. The idea of primary education for girls has been accepted for secondary and college education. The idea has to be worked upon. It is a cultural thing and depends a lot on the mindset of parents, but progress will definitely be there. तभी बिल गेट्स आंसर करते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत प्रोग्रेस कर रही हैं लड़कियों की एजुकेशन के लिए भी, और जो आइडिया है प्राइमरी एजुकेशन का गर्ल्स के लिए वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन के लिए इस पर काम हो रहा है कि गर्ल्स को भी सेकेंडरी एजुकेशन मिलना चाहिए। इट इज़ देयर राइट, और ये एक कल्चरल थिंग भी है जो कि पेरेंट्स के माँ बाप के माइंडसेट पर डिपेंड करती है कि वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स ऑल्सो कि उन्हें अपनी लड़कियों को प्रॉपर एजुकेशन दिलानी चाहिए। Anju, sir, your views and visions are really enlightening. Your commitment towards such a noble cause is very inspiring. तभी अंजू कहती है कि आपके जो विजन है, आपका जो विचार है, आपका जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा enlightening है, और आपका कमिटमेंट जो है काम करने की तरफ लोगों के वेलफेयर के लिए इज़ वेरी इंस्पायरिंग, इज़ वेरी एनकरेजिंग। बिल गेट्स, वेल आई होप दैट वी कैन पास ऑन अ बेटर वर्ल्ड टू योर जनरेशन एंड यू विल ऑल कैरी फॉरवर्ड द गुड वर्क टू द नेक्स्ट लेवल। और बिल गेट्स कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जनरेशन तक हम दुनिया को एक बेटर डायरेक्शन में लेकर जा सकें और आप लोग भी इस अच्छे काम को नेक्स्ट लेवल तक फॉरवर्ड करें। अंजू, श्योर सर, आई थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड शेयरिंग योर व्यूज। बिल गेट्स, माई प्लेजर, आई एन्जॉय टॉकिंग टू यू, थैंक्स। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, नाउ द चैप्टर इज finished.